Hello everyone, welcome to this video, and in today's video I'm going to explain you the value added course Swachh Bharat semester 1 Delhi University course. So the syllabus is divided into 3 units. The unit first we have introduction to Swachh Bharat Abhiyan. In unit 2 we have Swachh Bharat rural and urban facets, and the last unit is prospects and challenges of Swachh Bharat Abhiyan. Okay, so I'm covering all these 3 units in this video in briefly. So stick to the video till the end, and yes, you also get the notes, so check out the description for free notes of this Swachh Bharat VAC semester 1, and try to share this video with your class groups as much as possible, because examination for this VAC Swachh Bharat is within 1 to 2 days. So make sure everyone who opted this VAC Swachh Bharat will reach this video and take advantage, because a lot of effort has been put it in making these videos and notes. So I hope you understand, and thanks for supporting. So coming to the introduction part, introduction to स्वच्छ भारत अभियान. As we all know that this is a very common topic. आप सबको पहले से पता होगा स्वच्छ भारत अभियान जो है स्टार्ट हुआ था 2014 में by the Indian Prime Minister Narendra Modi. Obviously Indian Prime Minister Narendra Modi, because it's an Indian mission, but it's a national wide campaign. It's not any state or something central. It's a national wide campaign launched by Prime Minister Narendra Modi in 2014 to make India clean and hygienic. Okay, its goal is to build toilets, eliminate open defecation, and promote sanitation and waste management. The campaign mobilized millions of people to take places and participate in cleanliness drives and awareness activities. It achieved its target of making rural India defecation free by 2019 by constructing over 100 million toilets and providing access to safe water and sanitation facilities. तो समझ में आ रहा होगा आपको, स्वच्छ भारत अभियान जो नेशनल वाइड कैंपेन लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में, जिससे एक मिशन था कि भारत को क्लीन और हाइजीनिक बनाना है. इसका गोल था कि टॉयलेट्स को बिल्ड करना है. ओपन डिफेकेशन मतलब बाहर खुले में जो शौच होता है, या फिर गांव में आप जानते हो बहुत सारी इस टाइप की चीज़ें पहले जो थी, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए ये मिशन लॉन्च हुआ था. अब के टाइम में बहुत हद तक कम हो चुका है. तो इस मिशन का मतलब सक्सेसफुल ये हुआ था, सक्सेस हुआ था ये मिशन. 100 मिलियन टॉयलेट्स बनाए गए थे इस मिशन से. 2022 तक ये पूरा कर लिया गया था. ठीक है. So these are the pointers. The campaign also focuses on improving solid waste management and creating smart cities in urban areas. So urban areas में smart cities बनाने का भी इसका फोकस था इस कैंपेन का. Overall स्वच्छ भारत अभियान is a national wide movement that reflects patriotism, social responsibility and environmental sustainability. Okay, so यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा. इन पॉइंटर्स को आपको याद रखना है. ठीक है. और ये टॉपिक जो है सबको फैमिलियर, सबको पता है टॉपिक के बारे में, तो बहुत ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है. बस आपको चीज़ें पढ़नी है और थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है. याद रखनी है चीज़ें कि हाँ ये चीज़ें हुई थी, ये पॉइंटर्स हैं, तो उनके हिसाब से इसलिए मैं नोट्स इसमें प्रॉपर बनाया हूँ, पॉइंटर्स के ही फॉर्म में है. तो आपको बस याद रखना है और एग्जाम को लिख देना है जाके. और क्योंकि फैमिलियर टॉपिक है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा इसमें. अब आता है नेक्स्ट हमारा गांधीयन फिलोसफी ऑफ क्लीननेस. महात्मा गांधी वॉज ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ क्लीननेस एंड हाइजीन, एंड philosophy on cleanliness has a significant influence on the स्वच्छ भारत अभियान. सबको पता है गांधी जी जो थे वो क्लीननेस और हाइजीन में काफ़ी ज़्यादा मतलब वो स्ट्रॉन्ग उनका बिलीफ था इसमें. वो इस चीज़ के लिए वो काफ़ी सिंसियर थे, एंड उनका फिलोसफी भी था क्लीननेस का. ठीक है. और उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा था स्वच्छ भारत अभियान पे. अकॉर्डिंग टू गांधी, क्लीननेस वॉज नॉट जस्ट फिजिकल एक्ट बट ऑल्सो मेंटल एंड स्पिरिचुअल वन. गांधी जी के हिसाब से जो क्लीननेस है, साफ सफाई, एक फिजिकल एक्ट नहीं है बल्कि एक मेंटल और स्पिरिचुअल चीज़ें भी हैं ये. तो ये बहुत सही बात उन्होंने बोली थी. गांधी जी बिलीव दैट क्लीननेस वाज एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड इट हैड a significant impact on people's physical and mental well-being. बिल्कुल सही बात है. गांधी जी ये बिलीव करते थे कि जो ह्यूमन लाइफ है इसमें क्लीननेस का इम्पैक्ट जो है ना कि सिर्फ फिजिकल पे ही बल्कि मेंटल पे भी. अगर आप अपने आसपास में साफ सफाई रखते हो तो ना कि वो आपके लिए फिजिकली हेल्प करेगा बल्कि आप मेंटली भी अच्छा फील करोगे, एंड वो आपके लिए बहुत सही रहेगा. He believed that a clean environment was necessary for overall development of an individual and the society as a whole. वो बिलीव करते थे, गांधी जी ये बिलीव करते थे कि एक क्लीन इन्वायरमेंट जो है ये बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है किसी भी इंडिविजुअल के ओवरऑल डेवलपमेंट में या फिर एक सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी एक क्लीन इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, जो कि बिल्कुल सही बात है, होना भी चाहिए. ठीक है. तो ये सारे पॉइंटर्स है, याद रखने हैं आपको. ठीक है. फॉर गांधी, क्लीननेस वॉज नॉट जस्ट अबाउट कीपिंग वन सेल्फ एंड वन अराउंडिंग सेल्फ, but it was about practicing self-discipline and self-control. He believed that cleanliness of mind and body was crucial for achieving inner peace and harmony. तो यहाँ से आप समझ सकते हो गांधी जी ये बिलीव करते थे कि सिर्फ और सिर्फ क्लीननेस जो है आसपास के सराउंडिंग्स को क्लीन करना ही नहीं है. क्लीननेस का ये भी मतलब है कि आप अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में प्रैक्टिस करो, सेल्फ कंट्रोल आपके पास होना चाहिए. और क्लीननेस से आपकी माइंड और बॉडी जो है उस पर आप इनर पीस और हार्मोनी अचीव कर पाओगे अगर आप क्लीननेस को फॉलो करते हो तो. ठीक है. गांधी जी प्रमोटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वच्छता और क्लीननेस थ्रू हिज ओन लाइफ एंड एक्शंस. तो गांधी जी ने स्वच्छता का जो मतलब है वो अपने ही लाइफ से और
समझाया इसका कॉन्सेप्ट और अपने ही एक्शन से उन्होंने ये समझाया था. ही एडवोकेटेड फॉर द यूज ऑफ नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्लीनिंग सच एज यूजिंग काउ डंग एंड यूरिन फॉर क्लीनिंग डिसइंफेक्टिंग इंस्टेड ऑफ केमिकल वेस्ट प्रोडक्ट. तो उन्होंने पूरा ये बताया था कि कैसे वो नेचुरल चीज़ें ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो करके क्लीननेस को अचीव कर सकते हैं, जैसे कि काउ डंग को इस्तेमाल करके क्लीन करना कुछ चीज़ें, काउ यूरिन को, इस टाइप से वो ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो करते थे. और गांधी जी ऑल्सो बिलीव इन द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन मेंटेनिंग क्लीननेस. ही इनकरेज पीपल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लीनिंग देयर सराउंडिंग्स एंड टू वर्क टुगेदर टू कीप देयर कम्युनिटीज क्लीन. तो गांधी जी कम्युनिटी का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रखते थे, जैसे कि अकेला कुछ नहीं कर सकता कोई, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है. अगर सभी लोग मिलकर करेंगे तो चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती हैं. तो वही बिलीव था गांधी जी का. वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बिलीव करते थे क्लीननेस के लिए एंड इनकरेज करते थे लोगों को, जिससे कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं और क्लीन करें, अपने आसपास को, सराउंडिंग्स को क्लीन करें और साथ में काम करें. ठीक है. स्वच्छ भारत अभियान, अब हम डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में. स्वच्छ भारत अभियान और SBA ये शॉर्ट फॉर्म है, आप ध्यान रखिएगा जब भी मैं SBA बोलूँ या फिर आप भी अपने दिमाग में डाल लो कि स्वच्छ भारत अभियान जो है इसका शॉर्ट फॉर्म SBA है, तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है. स्वच्छ भारत अभियान SBA और क्लीन इंडिया मिशन इज ए नेशनल वाइड क्लीननेस कैंपेन लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट in 2014. The objective of this campaign is to make India clean and free from open defecation, litter and garbage. क्लियर है. ऑब्जेक्टिव मेन इसका था कि इंडिया को क्लीन करना है एंड जो ओपन डिस्कशन है, जो गांव या फिर शहरों में भी बाहर में कूड़ा कचरा गार्बेज शौच ये चीज़ें जो बहुत पहले थी, मतलब उसको हटाने के लिए ये मिशन को लॉन्च किया गया था. द कैंपेन हैज टू प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स. दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है. पहला, टू एलिमिनेट ओपन डिफेकेशन. द SBA एम्स टू अचीव ए क्लीन इंडिया बाय द ईयर 2022 which marks the 150th birth anniversary of महात्मा गांधी. तो 2022 में जो 2 अक्टूबर था वो 150वां एनिवर्सरी था महात्मा गांधी का. तो वहाँ तक 2022 तक में इस मिशन को अचीव करने का टारगेट था, जो कि सक्सेसफुली हुआ भी, जो हम आगे पढ़ेंगे. वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैंपेन इज टू एलिमिनेट ओपन डिफेकेशन एंड इंश्योर दैट एवरी हाउस होल्ड हैज एक्सेस टू टॉयलेट. सबसे मतलब ये मिशन था, पहला ये ऑब्जेक्टिव था कि जो खुले में शौच है या फिर इस टाइप की चीज़ें हैं उसको खत्म करना है, एलिमिनेट करना है, और हर एक घर के पास एक टॉयलेट होना ही चाहिए. ये पहला ऑब्जेक्टिव था. दूसरा ऑब्जेक्टिव था to eradicate the practice of manual scavenging. The SBA also aims to eradicate the practice of manual scavenging, which involves manually cleaning human waste from dry latrines. The government is strictly actively involved in the implementing the campaign, and several measures have been taken to making it successful. ठीक है. तो दूसरा कहानी भी यही था. Here are some of the key features of स्वच्छ भारत अभियान. तो की फीचर्स क्या थे कुछ, उसको देख लेते हैं. पहला था कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट्स. द गवर्नमेंट हैज set target of constructing 100 million toilets across the country to eliminate open defecation. The campaign has also led to the construction of gender segregated toilets in schools, colleges and public places. क्लियर है, यहाँ पे समझाने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है. Solid waste management. The SBA aims to promote proper disposal of solid waste by providing waste bins, setting up waste treatment plants and encouraging segregation of waste at source. तो solid waste management का भी ध्यान था और इसको भी रखा गया था इसमें कैंपेन में. ऑब्जेक्टिव में ये भी था. तीसरा, अवेयरनेस एंड बिहेवियर चेंज. द कैंपेन फोकस ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीननेस एंड सैनिटेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इसको इंक्लूड की गई थी. अवेयरनेस बहुत जरूरी है, विदाउट अवेयरनेस कुछ नहीं हो सकता. तो ये मिशन में जो ये था अवेयरनेस कैंपेन भी था, फोकस करता था कि दूसरों को, आई मीन पीपल्स को अवेयर करना अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीननेस और सैनिटेशन. द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड सेवरल इनिशिएटिव टू इनकरेज बिहेवियर चेंज इंक्लूडिंग द यूज ऑफ सोशल मीडिया, एडवर्टाइजमेंट्स एंड पब्लिक कैंपेन्स. Swachh Bharat course. The Swachh Bharat is a fund set up by government to collect funds from corporate entities and individuals for Swachh Bharat Abhiyan. The funds collected are used for constructing toilets, promoting hygiene and cleanliness and creating awareness. स्वच्छ भारत कोर्स क्रिएट किया गया था जिससे कि फंड्स इसमें आते थे. इसमें मतलब बड़े बड़े बिजनेस कॉरपोरेट्स, इन लोगों से भी फंड्स मिले, जिससे कि और उस फंड के हेल्प से जो भी टॉयलेट्स वगैरह बनाना या फिर जो भी चीज़ें इस मिशन में हेल्पफुल थी उसके लिए यूज़ की गई थी. फिफ्थ पॉइंट है स्वच्छता ही सेवा. द गवर्नमेंट हैज लॉन्च द स्वच्छता ही सेवा कैंपेन विच इज अ मास मूवमेंट एम्ड एट क्रिएटिंग ए क्लीनर एंड हेल्थियर इंडिया. दिस कैंपेन इनकरेजेस पीपल टू टेक द प्लेस ऑफ क्लीननेस एंड पार्टिसिपेट इन क्लीननेस ड्राइव. तो स्वच्छता ही सेवा कैंपेन लॉन्च किया गया था इसके अंदर ही, जिसमें लोगों को ये मोटिवेट किया जा रहा था कि वो क्लीननेस के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और इसका प्लेस लें और अपने इंडिया को क्लीनर और हेल्थियर बनाने में हेल्प करें. नेक्स्ट टॉपिक है हाइजीन, सैनिटेशन एंड सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट. Hygiene, sanitation and sustainable waste management are identical crucial components of Swachh Bharat Abhiyan. Here is a brief explanation of each. Hygiene refers to practice of
प्रैक्टिसेस दैट हेल्प मेंटेन गुड हेल्थ एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। हाइजीन का मतलब होता है जिससे कि आप हेल्थ आपका गुड रहे और डिजीज से बचे, उस टाइप की प्रैक्टिसेस को फॉलो करना। पर्सनल हाइजीन इंक्लूड्स प्रैक्टिसेस सच एज हैंड वॉशिंग, ब्रशिंग टीथ एंड बाथिंग, सबको पता है। Environmental hygiene refers to cleanliness and maintenance of surroundings such as homes, workplace and public places. तो आसपास के environmental hygiene का मतलब होता है आसपास की जगह को क्लीन करना, होम, वर्क प्लेस और पब्लिक प्लेसेस में क्लीननेस लाना। द स्वच्छ भारत अभियान प्रमोट्स द हाइजीन प्रैक्टिसेस सच एज हैंड वॉशिंग, menstrual hygiene and safe disposal of sanitary napkins etc. सैनिटेशन क्या होता है? सैनिटेशन रेफर्स टू प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज एंड सर्विसेज फॉर सेफ डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट। तो इसको सैनिटेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल हो सके, ह्यूमन वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल हो सके, तो उस फैसिलिटीज को हम लोग सैनिटेशन बोलते हैं। तो स्वच्छ भारत अभियान एम्स टू एलिमिनेट ओपन डिफेकेशन एंड प्रोवाइड एक्सेस टू टॉयलेट्स फॉर ऑल। द गवर्नमेंट हैज सेट टारगेट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 100 मिलियन टॉयलेट्स अक्रॉस द कंट्री टू अचीव दिस गोल। तो 100 मिलियन टॉयलेट्स बनाने का टारगेट किया गया था जिससे कि इस गोल को अचीव कर दिया जाए, जिससे कि सैनिटेशन प्रॉपर हो सके। थर्ड था सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट। सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट रेफर्स टू प्रॉपर हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इन अ वे दैट डज नॉट हार्म द एनवायरमेंट। इसका मतलब ये होता है कि इस तरीके से वेस्ट को मैनेजमेंट करना, वेस्ट को डिस्पोज करना जिससे कि इन्वायरमेंट को भी हार्म ना पहुंचे। तो द स्वच्छ भारत अभियान प्रमोट्स सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस सच एज सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट at source, composting and recycling. The campaign also aims to reduce the use of single-use plastics and promote the use of eco-friendly alternatives. Clear है? Next है स्वच्छ भारत अभियान recognizes that hygiene, sanitation and sustainable waste management are interconnected and essential for creating a cleaner and healthier environment. By promoting these practices, the campaign aims to bring out a behavioral change in people and create a more sustainable and livable India. Some of the measures taken by the government to promote hygiene, sanitation and sustainable waste management under the Swachh Bharat Abhiyan include कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स एंड हाउस होल्ड, स्कूल एंड पब्लिक प्लेसेस। तो इसको अचीव करने के लिए कुछ और भी पॉइंटर्स देख लेते हैं हम लोग। देखिए सारी चीज़ें बार बार आपको घुमा फिरा के एक ही दो बातें जो है हर जगह मिलेंगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स, प्रमोशन ऑफ बिहेवियरल चेंज थ्रू अवेयरनेस कैंपेन, सोशल मीडिया एंड एडवर्टाइजमेंट, प्रोविजन ऑफ वेस्ट बीन्स एंड सेटिंग अप वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स, encouraging segregation of waste at source and promoting composting and recycling, ban of single use plastic and promoting the use of eco friendly alternatives। तो इन सब पॉइंटर्स को आपको याद ही कर लेना जिससे कि एग्जामिनेशन में कुछ भी पूछे रिलेटेड टॉपिक्स तो इन सब चीज़ों को आपको पता रहेगा तो आप आराम से लिख दोगे। एंड दिस वीडियो इज नॉट फॉर पास मार्क्स, इससे आप अच्छा इसको कर सकते हो बिकॉज इसमें सारे टॉपिक्स जो है आपके सिलेबस के वो कवर कर दिए। सिलेबस भी मैंने इसलिए स्टार्टिंग में ही बता दिया आपको। एंड टॉपिक समझ में आ जाएगा तो आप खुद से भी बना सकते हो, जरूरी नहीं कि वो क्वेश्चन आ जाए तो वही जरूरत है। टॉपिक सारे समझ में आ जाएंगे आपको यहाँ से, आप इसको रिमेंबर करके रखे रहोगे तो एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो टॉपिक से ही आएगा। एंड टॉपिक आपने कर लिया है तो आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एजेंसीज एंड नोडल मिनिस्ट्रीज ऑफ एसबीए। तो सेवरल एजेंसी एंड नोडल मिनिस्ट्री आर इन्वॉल्व इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्वच्छ भारत अभियान इन इंडिया। हियर आर सम ऑफ द की एजेंसी एंड मिनिस्ट्री। तो बहुत सारे एजेंसी और नोडल अथॉरिटीज जो है इस मिशन में, इस अभियान में इन्वॉल्व थी, तो उसके बारे में हमें जानना है तो हम देख लेते हैं। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्वच्छ भारत अभियान इन अर्बन एरियाज। The ministry is responsible for providing funds and overseeing the implementation of campaign in urban local bodies। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर था, ये स्वच्छ भारत अभियान के इम्प्लीमेंटेशन के लिए था अर्बन एरियाज में। और ये मिनिस्ट्री जो है फंड्स प्रोवाइड करने में रिस्पॉन्सिबल था और इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं सही से उसको देखने में, ठीक है। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फॉर द स्वच्छ भारत अभियान इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में था मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के अंदर आता था। और इसमें द मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फंड्स एंड ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूरल। जो गाँव के क्षेत्रों में इस मिनिस्ट्री के हेल्प से, इस मिनिस्ट्री के देख रेख में और इस मिनिस्ट्री ने फंड प्रोवाइड किए थे इस मिशन के लिए, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द स्वच्छ भारत अभियान एट द स्टेट लेवल। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फंड्स, इम्प्लीमेंटिंग द कैंपेन इन लोकल बॉडीज एंड मॉनिटरिंग इट्स प्रोग्रेस। तो स्टेट गवर्नमेंट्स जो है अपने स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। Municipal corporations are responsible for implementing the Swachh Bharat Abhiyan in urban areas. They are responsible for constructing toilets, promoting waste segregation and treatment, and ensuring the cleanliness in public places, ठीक है। Public sector enterprise जैसे कि railways, Air India and other public sector undertakings are also involved in the implementation of Swachh Bharat Abhiyan. They are responsible for maintaining cleanliness and hygiene in their facilities and promoting awareness among their employees and customers। जैसे कि रेलवेज या एयर इंडिया है वो भी इस मिशन में इन्वॉल्व थी एंड इसको प्रमोट करने के लिए और बेटर अपने जैसे कि रेलवेज है तो वो अपने रेल सर्विसेज में इन चीज़ों को सही कर रही थी, फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही थी रिलेटेड टू द स्वच्छ भारत अभियान एंड अवेयरनेस एंड ऑल, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व थी इसमें, ठीक है।
सिक्स है एनजीओ एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ है और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन थी, ये भी इन्वॉल्व थी promoting and creating awareness and behavior change among the people. They are also involved in the organizing cleanliness drives, promoting waste segregation and treatment, and creating awareness about hygiene and sanitation. ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंट फेजेज ऑफ एसबीए एंड इट्स इवोल्यूशन। तो स्वच्छ भारत अभियान हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन सेवरल फेज सिंस इट्स लॉन्च इन 2014। बहुत सारे फेजेज में ये हुआ है, तो कुछ फेजेज हैं उसको हम देख लेते हैं। पहला फेज था फेज 1 2014 से 17 तक। द फर्स्ट फेज ऑफ एसबीए फोकस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट्स एंड एंडिंग ओपन डेफिकेशन। ठीक है, पहला फेज था यही कि आपको टॉयलेट्स बनाना है, 100 मिलियन टॉयलेट्स का टारगेट था। इसको बना करके जो ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच और इत्यादि चीज़ें जो हैं, इसको ख़त्म करना था। पूरे कंट्री में 100 मिलियन टॉयलेट्स बनाने थे। द गवर्नमेंट ऑल्सो लॉन्च द स्वच्छ भारत कोर्स टू मोबिलाइज फंड्स फॉर द कैंपेन। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट इवोल्यूशन, द फर्स्ट फेज वॉज सक्सेसफुल इन अचीविंग इट्स टारगेट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट्स एंड रिड्यूसिंग ओपन डेफिकेशन। एंड पहला फेज जो था इसमें पूरा पूरा सफल हो गया। ये जो अभियान था, 100 मिलियन टॉयलेट्स बन गए थे एंड ओपन डिफ्यूजन बहुत कम हुआ था। बहुत मतलब बहुत कम दिखता है अब, तो बहुत सक्सेस हुआ था इसका। सेकेंड फेज था 18-19 का। द सेकेंड फेज ऑफ एसबीए फोकस्ड ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रमोटिंग क्लीननेस। ड्यूरिंग दिस फेज गवर्नमेंट लॉन्च सेवरल इनिशिएटिव्स सच एज स्वच्छ सर्वेक्षण and Swachh Bharat summer internship program to promote the cleanliness and waste management. According to the government evaluation, the second plan was successful in creating awareness about cleanliness and promoting waste segregation and treatment. दूसरा फेज था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का और क्लीननेस प्रमोट करने का, और ये भी बहुत सक्सेसफुल रहा। इसमें भी लॉन्च की गई स्कीम्स जो आप देख सकते हो, यहाँ मैंने पढ़ दिया। ठीक है, थर्ड फेज है 2019 ऑनवर्ड्स। द थर्ड फेज ऑफ एसबीए फोकस ऑन sustaining the gains made in previous phases and promoting behavior change. The government has set a target of making India completely open defecation free and achieving sustainable waste management by 2022. The government has also launched initiatives such as Swachh Bharat Run and Swachh Bharat Divas to create awareness about cleanliness and hygiene. The evolution of the third phase is ongoing, यहाँ लिखा हुआ है, बट ये कंप्लीट हो चुका है लगभग, एंड ये भी काफ़ी सक्सेसफुल था। ठीक है, तो बुक्स में थोड़ा ये लिखा रहता है ऑन गोइंग चीज़ें, क्योंकि बुक्स एडिशन जो है वो थोड़ी ओल्ड होती है, इसलिए। द इवोल्यूशन ऑफ स्वच्छ भारत अभियान हैज़ बीन कैरिड आउट बाय वेरियस एजेंसी सच एज, एंड मैंने बुक्स और रेफरेंस बुक्स को फॉलो किया है इसको बनाने के लिए, जिससे कि स्ट्रिक्टली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीज़ें बता पाऊँ, एक्स्ट्रा कुछ फालतू क्योंकि टाइम भी नहीं है ना 1-2 दिन में अभी क्या करना है, सिर्फ हमें उतना देखना है जो हमारे काम का हो। ठीक है, सो डेट्स वाई। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है इवोल्यूशन ऑफ स्वच्छ भारत स्कीम हैज़ बीन कैरिड आउट बाय वेरियस एजेंसी। तो इसका जो इवोल्यूशन है ये बहुत वेरियस एजेंसी ने किया, जैसे कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एंड द क्वांटिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये जो एजेंसी है इसने स्वच्छ भारत अभियान का इवेल्यूशन किया। द इवेल्यूशन हैज शोन दैट एसबी हैज लेड टू सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द एरियाज ऑफ सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्लीननेस। द परसेंटेज ऑफ हाउसहोल्ड विद टॉयलेट इंक्रीज फ्रॉम 39% इन 2014 टू 100% इन 2019। मतलब 100% अचीव किए गए टारगेट को। Open defecation has also reduced significantly from 550 million people in 2020 to less than 100 million people in 2019. The Swachh Sarvekshan survey conducted by government has also shown an improvement in the cleanliness of cities and towns. तो ओवरऑल जो भी चीज़ें हैं सर्वे करा के या फिर डाटा के अनुसार दिखाया, तो हर एक चीज़ क्लियरली दिखा रहा है कि सक्सेसफुल मिशन हो गया, एंड आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी क्लियरली देख सकते हो कि बहुत सक्सेसफुल हुआ था ये मिशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कुछ इसके बारे में पढ़ना है कि रोल ऑफ स्वच्छाग्रही। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान इज नॉट जस्ट ए गवर्नमेंट इनिशिएटिव। ये जो इनिशिएटिव था सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का ही इनिशिएटिव नहीं था, बट इट ऑल्सो इन्वॉल्व द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स इन क्रिएटिंग ए क्लीनर एंड हेल्थियर इंडिया। ठीक है, तो सिटीजन्स के भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन था इसमें। द सिटीजन्स हैव सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू फुलफिल इन ऑर्डर टू मेक द एसबीए ए सक्सेस। वन ऑफ द की रोल्स दैट सिटीजन्स कैन प्ले इन एसबीए इज दैट ऑफ स्वच्छाग्रही। तो सिटीजन्स के काफ़ी अच्छे खासे रोल थे इसमें, तभी ये मिशन सक्सेसफुल हो पाया। और सबसे पहला रोल तो था इसमें सिटीजन्स का कि वो एक स्वच्छाग्रही का रोल प्ले करे। ए स्वच्छाग्रही इज अ पर्सन हु इज कमिटेड टू क्लीननेस एंड सैनिटेशन एंड टेक द प्रोएक्टिव स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस एंड प्रमोट बिहेवियर चेंज अमॉन्ग द पीपल। स्वच्छाग्रही वैसा पर्सन होता है जो क्लीननेस और सैनिटेशन के लिए कमिटेड होता है और वो खुद से प्रोएक्टिव स्टेप्स लेता है टू क्रिएट अवेयरनेस एंड प्रमोट द बिहेवियर चेंज अमॉन्ग द पीपल। हियर आर सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए स्वच्छाग्रही। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको मैंने बुलेट पॉइंट्स में डाल रखा है, तो आप उसको देख सकते हो। जैसे कि प्रमोटिंग अवेयरनेस प्रमोट करना, फिर बिहेवियर चेंजेस, जैसे कि स्वच्छाग्रही कैन इनकरेज बिहेवियर चेंज अमंग पीपल बाय प्रमोटिंग यूज ऑफ टॉयलेट्स, डिस्करेजिंग ओपन डिफेकेशन, प्रमोटिंग वेस्ट सेग्रीगेशन एंड ट्रीटमेंट, एंड डिस्करेजिंग लिटरिंग एंड स्पीडिंग इन पब्लिक प्लेसेस। ठीक है,
तीसरा है मॉनिटरिंग, स्वच्छाग्रही कैन मॉनिटर द क्लीननेस एंड हाइजीन ऑफ पब्लिक प्लेसेस सच एज स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट एंड रिपोर्ट एनी इश्यूज टू द अथॉरिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप कहीं पे देख रहे हो ऐसी गंदगी या फिर चीज़ें हो रही तो आप अथॉरिटी को रिपोर्ट करो। तो ये जो बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इससे कई हद तक चीज़ें बहुत सही हुई थी। तो ये मॉनिटरिंग का भी रोल था। फोर्थ है कोलाबोरेशन, स्वच्छाग्रही कैन कोलाबोरेट विद लोकल अथॉरिटीज, एनजीओ एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट अवेयरनेस एंड प्रमोट बिहेवियर चेंज। Fifth है setting an example. So Chagrahi can set example for others by maintaining cleanliness and hygiene in their own homes and workplaces. खुद का एग्जाम्पल सेट करना। अगर स्वच्छाग्रही जो थे वो क्या कर रहे थे, खुद की वो क्लीननेस और अपने घर में और अपने ऑफिस में अपनी जगह पे क्लीननेस को करके वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहे थे कि ऐसे इनकरेज कर रहे थे जिससे लोग भी इसको फॉलो करें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्वच्छ भारत रूरल एंड अर्बन फेसेट्स। स्वच्छ भारत अभियान है बोथ रूरल एंड अर्बन फेसेट्स। ये एक ही, ये तो स्टार्टिंग में बता दें कि नेशनल मूवमेंट था, इसमें रूरल एंड अर्बन दोनों ही चीज़ों को कंसिडर की गई थी। और क्योंकि क्लीननेस जो है एंड सैनिटेशन चैलेंज आर फेस बाय दीज एरियाज आर डिफरेंट, और यहाँ पे चीज़ें दोनों के लिए थोड़ी अलग हो जाती हैं, क्योंकि रूरल एरियाज में चीज़ें जो हैं वो अलग हैं और अर्बन एरियाज में अलग है। ठीक है, दोनों का सेम केस नहीं है क्लीननेस में। ठीक है, रूरल फैसेट्स में बात की जाए तो मेन फोकस था कि ओपन डिफेकेशन को खत्म करना, जो खुले में शौच और इत्यादि की जो समस्या थी गंदगी, उसको खत्म करना, ये मेन टारगेट था रूरल एरियाज, बिकॉज ये रूरल एरिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। एंड प्रोमोटिंग द यूज ऑफ टॉयलेट्स, बिकॉज रूरल एरियाज में लोग टॉयलेट थे ही नहीं किसी के घर में। ठीक है, ओपन डिफेकेशन ही वहाँ उनका पूरा था, तो उस वो बहुत मेन टारगेट था। द गवर्नमेंट हैज सेट टारगेट ऑफ 100 मिलियन टॉयलेट्स इन रूरल एरिया। तो ये सब चीज़ें जो है थी, तो इस पर फोकस किया गया। ठीक है, अर्बन फैसेट्स में क्या था, बाकी चीज़ें और पढ़ लेना आप, मैं पूरा पूरा इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज चीज़ें वही बार बार लिखी गई हैं, क्योंकि वही चीज़ें ही मतलब अब 100 मिलियन टॉयलेट्स बनाना ये टारगेट था। तो ये मैंने कई बार बोल ही दिया ऑलरेडी, तो फिर इसमें बार बार बोलना टाइम वेस्ट होगा। इसको आपको घर पे पढ़ना होगा, इस नोट्स को डाउनलोड करके, जिससे कि आप अच्छे से कर पाओ। बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो अर्बन फैसेट्स में क्या था, रूरल एरिया में तो हम समझ गए कि मेन टारगेट था कि ओपन डिफेकेशन को खत्म करना, टॉयलेट्स को यूज़ करना, प्रमोट करना। ठीक है, कि टॉयलेट्स का लोग यूज़ करें। ठीक है, और 100 मिलियन टॉयलेट बनाना जो था ये टारगेट था। अब आता है अर्बन फेसेट्स। इन अर्बन एरियाज मेन फोकस ऑफ एसबीआई इज ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एज अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड इन सिटीज एंड टाउन इज मच हायर देन इन रूरल एरिया। अर्बन एरिया में मतलब ये था कि वेस्ट मैनेजमेंट की दिक्कत आ रही थी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, बिकॉज बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेट हो रहे थे इन कंपेरिजन टू रूरल एरियाज की बात की जाए तो। ठीक है, the SBA aims to promote waste segregation, waste treatment and recycling. They reduce the amount of waste that is sent to landfills. The SBA is implemented through Swachh Bharat Mission Urban, which involves the construction of toilet and waste management and behavior change communication. तो अर्बन एरिया में था वो वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट करना था और उसके लिए काम करना था, उसके लिए सेटअप करना था। ठीक है, रिसाइकल और जो भी चीज़ें होती हैं उसमें इन्वॉल्व उसको। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। थर्ड है बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। वन ऑफ द की इंपॉर्टेंट ऑफ एसबीआई बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व क्रिएटिंग अवेयरनेस, ये सबको पता है। पब्लिक पार्टिसिपेशन अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एसबीआई का, इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन, इसमें रूरल और अर्बन एरिया दोनों में ही इन्वॉल्वमेंट पब्लिक का बहुत क्रूशियल था, एंड इसके थ्रू ही हेल्थियर और क्लीनर इन्वायरमेंट को अचीव किया जा सकता था। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब आता है इंडिकेटर ऑफ स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत अभियान है सेवरल इंडिकेटर डेट आर यूज्ड टू मेजर इट्स प्रोग्रेस एंड सक्सेस। की इंडिकेटर्स क्या है, ओपन डिफेकेशन है, वही चीज़ें हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अनदर इंडिकेटर है। इन द मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट द एसबीआई एम्स टू प्रमोट वेस्ट सेग्रीगेशन, ट्रीटमेंट एंड रिसाइकलिंग एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट टू sent to landfills etc. ठीक है, the percentage of waste segregated and treated, the number of composting recycled unit setup and the reduction in landfill waste are some of the indicators used to measure the progress. ठीक है, तो प्रोग्रेस मेजर करने के लिए ये देखा गया कि कितने जो है रिडक्शन हुए लैंडफिल वेस्ट में और कितना रिसाइकल हुआ, इन सब चीज़ों से इसका मेजरमेंट हुआ। ठीक है, और ओपन डिफिशिएंसी में क्या मेजरमेंट था, नंबर ऑफ टॉयलेट कंस्ट्रक्टेड एंड परसेंटेज हाउस होल्ड विद एक्सेस टू टॉयलेट्स आर सम ऑफ द इंडिकेटर्स यूज्ड टू मेजर द प्रोग्रेस। तो इस ओपन डिफिशिएंसी के लिए मेजरमेंट ये था कि जितने नंबर ऑफ टॉयलेट्स बने थे हाउस होल्ड्स में, उससे हम मेजर कर सकते थे कि चीज़ें कितनी कम हुई है। ठीक है, क्लीननेस ऑफ पब्लिक प्लेसेस जो था, तो पब्लिक प्लेसेस का क्लीननेस था, इसमें रिडक्शन इन लिटरिंग एंड स्पीटिंग इन पब्लिक एरिया आर सम ऑफ द इंडिकेटर्स यूज्ड टू मेजर द प्रोग्रेस इन दिस एरिया। ठीक है, बिहेवियर चेंज था, इसमें क्या था, द रिडक्शन इन ओपन डिफेकेशन एंड लिटरिंग आर सम ऑफ द इंडिकेटर्स यूज्ड टू मेजर द प्रोग्रेस इन बिहेवियर चेंज। बिकॉज बिहेवियर चेंज कैसे हुआ है, हम कैसे मेजर करेंगे, हम ऐसे मेजर करेंगे अगर लोग पब्लिक में लिटर नहीं कर रहे हैं, स्पीट नहीं कर रहे हैं, चीज़ें क्लीन हो रही है, तो हम समझ जाएंगे कि हमने जो बिहेवियर चेंज था हमने वो सक्सेसफुल हमने कर लिया, लोगों के बिहेवियर में हमने चेंज किया है एंड लोग अब अवेयर हो चुके हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है स्वच्छता
Swachh Sarvekshan. The Swachh Sarvekshan is a survey conducted by the government to measure the cleanliness and sanitation levels of cities and towns. The survey covers the several parameters such as waste management, open defecation, and citizen feedback, and provides ranking to cities and towns based on their performance. तो इसमें सिटीज़ का रैंकिंग में किया गया था टाउन का जो सबसे क्लीनर है या फिर जो भी चीज़ें हैं इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स जैसे मैंने डिस्कस किया, ठीक है। अब आते हैं रूरल एरियाज। रूरल एरियाज के कुछ इंपॉर्टेंट कहानी देख लेते हैं। सैनिटेशन कवरेज अक्रॉस हाउस होल्ड 2014 वर्सेज 2022। स्वच्छ भारत अभियान हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द सैनिटेशन कवरेज अक्रॉस रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया। According to government data, the sanitation coverage in rural area increased from 39% in 2014 to 99% in 2022. This means that almost all households in rural area now have access to toilets and are using them, which is significant achievement for the SBA. तो अब 100% लोग यूज कर रहे हैं टॉयलेट्स गांव में भी, रूरल एरियाज में भी, तो ये टारगेट जो है अचीव हो चुका है। दूसरा है ओपन डिफेकेशन फ्री ODF फ्री विलेजेस, ठीक है। तो इसमें क्या था कि इसमें भी वही सेम चीज़ें हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स था, बिहेवियर चेंज था और ODP वेरिफिकेशन। The once the construction of toilet is completed, the village is verified as ODP by the government officials. The verification process involves visiting every household in the village and checking whether they have access to toilets and are using them or not. इसका मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा अच्छे से, बिकॉज इन चीज़ों को मैंने देखी है लाइव, अपने गांव में भी मैंने देखा है चीज़ें। तो यहाँ लाइव ट्रैकिंग होती थी, जैसे कि गांव में जैसे कि पहले तो फंड्स आते थे पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर फैमिली को टॉयलेट्स बनाने के लिए। तो फिर जैसे कि वो टॉयलेट्स बना लेते हैं तो फिर गवर्नमेंट वेरीफाई करता है, चेक करता है कि वेदर दे आर यूजिंग और नॉट, वेदर दे हैव मेड और नॉट, एंड उसके बाद फिर इसको डिक्लेयर किया जाता है। जैसे कि एक गांव है उसमें फिर पूरा चेक कर लिया जाएगा कि यस हर एक इंडिविजुअल या फिर फैमिली के पास टॉयलेट्स का एक्सेस है या नहीं है, उन्हें मिला या नहीं। जो भी कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट करवाती है पैसे दे, मतलब दो टाइप का होता है, या तो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट करवा रही है या फिर गवर्नमेंट अकाउंट में पैसे भेज करके दे रही है इंडिविजुअल या फिर फैमिली को, जिससे कि वो कंस्ट्रक्ट कराए टॉयलेट। एंड उसके बाद उन्हें चेक भी होता है यस दे हैव मेड और नॉट, बिकॉज ऐसे तो पैसे कोई भी खा सकता है जैसे कि। तो उसके लिए प्रॉपर चेकिंग था, वेरिफिकेशन था, फोटोज अपलोड एंड ऑल, बहुत ट्रैकिंग थी। तो इन सब चीज़ों के कारण ही जो है ये अचीव हो पाया, ये 100% या फिर 99% जो भी है टॉयलेट्स जो है बन चुके थे एंड दे आर यूजिंग, ठीक है। ODF plus model. The ODF plus model is an extension of ODF model which aims to sustain the ODF facility in village and ensure they are clean and hygienic. अब ODF plus model ये एक्सटेंशन है ODF मॉडल का, जिसमें ये देखा गया कि जो भी टॉयलेट्स बने हैं वो क्लीन है या हाइजीनिक हो रही है नहीं। बिकॉज बना देना तो ठीक है, यूज़ करना भी ठीक है, बट उसका प्रॉपर हाइजीन मेंटेन होना, क्लीन रखना उसे, ये चीज़ें हैं या नहीं, उसके लिए ODF प्लस मॉडल लॉन्च किया गया था। इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में फोकस था, ग्रे वाटर मैनेजमेंट भी फोकस था, और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और बिहेवियर चेंज इंक्लूड किया गया था, ठीक है। अर्बन में आते हैं हम लोग। अर्बन में सस्टेनेबल सैनिटेशन का स्कीम था, फोकस था, जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट तो इसमें भी थे। इसमें भी फेशियल स्लज मैनेजमेंट था, सीवरेज सिस्टम था, सीवेज को बहुत सही किया गया। फिर बिहेवियरल चेंजेस इसमें भी था, प्रमोट करना, पीपल्स को अवेयर करना। वेस्ट और वेस्ट वाटर सॉलिड मैनेजमेंट था, ये भी था इसमें, ठीक है। इसको आप पढ़ लेना, प्रॉपर चीज़ें वही है, सेम सेम। द SBA एम्स टू promote proper waste and water management practices in urban areas to ensure that cities are clean and hygiene. The key focus areas for waste management and water management in urban areas include solid waste management and water management, ठीक है। प्रॉपर मैनेजमेंट हो पा रहा है या नहीं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो पा रही है या नहीं हो पा रही, कंजर्वेशन है या नहीं, इन सब पे फोकस था और इसके रिगार्डिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई थी। गार्बेज फ्री सिटीज, द SBA एम्स टू मेक अर्बन एरिया गार्बेज फ्री बाई प्रमोटिंग प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जैसे कि डोर टू डोर कलेक्शन, फिर सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, साइंटिफिक डिस्पोजल, बिहेवियर चेंज, इन सब चीज़ों को फॉलो करके गार्बेज फ्री बनाया गया। अब देखते हैं क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस थी इस मिशन में, जो हमारा स्वच्छ भारत अभियान मिशन है। इसमें प्रोस्पेक्ट्स था कि इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ इम्प्रूव हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इससे मिली बहुत सारे लोगों को, बिकॉज इस मिशन में बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज इन्वॉल्व थी, वेस्ट मैनेजमेंट, टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, तो इसमें काफ़ी वर्कर्स और लोग इन्वॉल्व थे, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई। इन्वायरमेंटल बेनिफिट हुआ, बिकॉज एनर्जी जो था, मतलब वेस्ट टू एनर्जी प्रोडक्ट बन रहे थे, रिसाइकल हो रहा था, चीज़ें मैनेजमेंट सही ढंग से हो रही थी, तो इन्वायरमेंटल बेनिफिट हो रहा था यहाँ पे। फोर्थ, टूरिज्म भी इसमें अच्छा हुआ, बिकॉज क्लीन इन्वायरमेंट दे करके आप टूरिज्म को अट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो टूरिज्म इंडस्ट्री में भी कंट्रीब्यूशन इसका बहुत मिला। चैलेंजेस क्या थे? बिहेवियर चेंज, मतलब बिगेस्ट चैलेंज था कि बिहेवियर चेंज, लोगों को समझाना, इसके बारे में अवेयर करना, लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना, ये सब चीज़ें चैलेंजेस थी, बट इसको भी अच्छे से फुलफिल किया गया। फंडिंग एक इंपॉर्टेंट चैलेंज था, फंडिंग भी, बिकॉज इतना ज़्यादा जो मिशन था इसको विदाउट फंडिंग अचीव करना भी मुश्किल था, तो इसमें
प्राइवेट सेक्टर और अदर कॉरपोरेट्स और जो भी चीज़ें हैं वो फंड किए थी इसमें, इस मिशन में, जिससे कि काफ़ी हेल्प मिला। तो ये एक चैलेंज था, बट इसे भी कोप अप किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक चैलेंज था, बिकॉज प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास था नहीं, तो वो भी एक चैलेंज था। बट जैसे कि टॉयलेट्स बनाना और मैनेजमेंट, उसका मेजर चैलेंज था रूरल एरियाज में खासकर, बट उससे भी देखा गया और हैंडल किया गया। मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन भी एक बड़ा टास्क है कि प्रॉपर हर लेवल जो चीज़ें सिर्फ डॉक्यूमेंट हो रही हैं या फिर वो असली ग्राउंड लेवल पे भी हो रही हैं या नहीं, तो उसके लिए मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन वाज मेजर चैलेंज। बट उसके लिए भी चीज़ें सही हुई और वो भी अच्छे से हो पाया। अवेयरनेस एंड एजुकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था यहाँ पे। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस एंड हाइजीन इज सिग्निफिकेंट चैलेंज दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड टू इंश्योर द स्वच्छ भारत अभियान। ये भी एक चैलेंज था, बट इसे भी इंश्योर किया गया। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, एटीट्यूड्स एंड परसेप्शन। तो एटीट्यूड्स एंड परसेप्शंस टुवर्ड क्लीननेस एंड हाइजीन आर क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ सक्सेस ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। हियर आर सम ऑफ द एटीट्यूड्स एंड परसेप्शंस दैट इंपैक्ट द इनिशिएटिव। सोशल नॉर्म्स जो हैं play a significant role in shaping the attitude and behavior toward cleanliness and hygiene. स्वच्छ भारत अभियान can be successful in changing the attitudes toward cleanliness. तो इससे बहुत चेंजेस आए एटीट्यूड्स में लोगों के, और पॉजिटिव ये इम्पैक्ट क्रिएट किया, और इसमें प्रायोरिटाइज किया गया क्लीननेस और हाइजीन को। परसेप्शन ऑफ क्लीननेस का परसेप्शन बदला गया। सिर्फ साफ सफाई ही नहीं, इंडिविजुअल्स का एक अलग परसेप्शन बनाया गया, जिससे कि बेसिक नेसेसिटी है क्लीननेस, एंड ये हेल्थ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके क्लीननेस का बहुत एक परसेप्शन बदला गया। ठीक है, अवेयरनेस एंड एजुकेशन क्लियर है, ये सब समझ में आ गया। पहले अवेयरनेस था, एजुकेशन कैसे इसको अवेयर करके लोगों को इंपॉर्टेंस बताया गया, एजुकेट किया गया, जिससे कि समझ में आए लोगों को। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मिला लोगों को, टॉयलेट्स बने गए, और बिहेवियरल चेंज, इसमें भी वही कहानी है, लोगों को समझाया गया। एटीट्यूड में चेंजेस आए। ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल इशूज देख लेते हैं। ऑपरेशन इम्प्लीमेंटेशन में बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है एनजीओ वगैरह का भी था, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उनका पार्टिसिपेशन था ऑपरेशनल में। तो उससे कोऑर्डिनेट करना, इंश्योर करना, ये सब चीज़ें बहुत हेल्प की इस इनिशिएटिव में। मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन था। मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्वच्छ भारत अभियान एसेंशियल टू इंश्योर इट्स इफेक्टिवनेस। जैसे कि कई बार मैंने बता ही दिया, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन के बिना तो ये प्रॉपर हो ही नहीं पाता सक्सेस, बिकॉज डॉक्यूमेंट्स में जो चीज़ें हो रही हैं वो रियल लाइफ में हो रही है नहीं, उसके लिए मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मॉनिटर हुआ था, चीज़ें सही हुई थी। ठीक है, तो बस ये आपको पॉइंटर्स याद रखने क्या क्या हुआ था, और थोड़ा जो इसमें लिखा हुआ वो भी याद रखना है। Capacity building of stakeholders, government agency and communities is critical for effective implementation of Swachh Bharat Abhiyan. This includes provide training and support to stakeholders to ensure that they have skills and knowledge to participate effectively in them. इसको उन्हें ये भी इंश्योर किया गया था कि जो भी ट्रेनिंग एंड सपोर्ट हो रहा है वो है या नहीं, बिकॉज स्किल्स इज रिक्वायर्ड इफ यू आर क्रिएटिंग एनी इनिशिएटिव और वांट दैट इट शुड बी इफेक्टिव, देन स्किल्स आल्सो रिक्वायर्ड। तो उसे ट्रेन किया गया था प्रॉपर, जिससे कि सही हो सके। ठीक है, फाइनेंशियल इशूज, फंडिंग, सस्टेनेबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि फाइनेंशियल इशूज थी, बट उसे भी कोप अप किया गया। इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन में रेगुलर मॉनिटरिंग होती थी, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स थे। ठीक है, जैसे कि number of wells constructed, the number of villages declared ODF, the number of household with access to proper waste management, ये परफॉर्मेंस पैरामीटर्स थे। सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन भी बहुत क्रिटिकल था, एंड इससे इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी कैसे क्या हो रहा है वो सब इंश्योर होती थी। दिस इंक्लूड्स कंडक्टिंग रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ टॉयलेट्स एंड वेस्ट मैनेजमेंट। रेगुलर इंस्पेक्शन किया जाता था, और इससे पता चलता था कि प्रॉपर फंक्शनिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। टेक्नोलॉजी इनेबल्ड मॉनिटरिंग भी होता था, जैसे कि इसकी इफेक्टिवनेस को और इन्हेंस किया जा सके, जैसे कि मोबाइल ऐप्स और डिजिटल टूल्स बहुत बनाए गए थे, बहुत स्कीम्स थी, जिससे कि अच्छे से मॉनिटर हो सके। फीडबैक एंड मैकेनिज्म भी फॉलो किया गया था, फीडबैक प्रॉपर लिया गया था लोगों से, जिससे कि इस इनिशिएटिव को और सुपर सक्सेस किया जाए। ठीक है, community mobilization is a critical component of Swachh Bharat Abhiyan. It refers to process of engaging and involving communities in planning, implementation and monitoring of activities. ठीक है, कम्युनिटी का प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होना था इसमें अवेयरनेस एंड एजुकेशन, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, सोशल मोबिलाइजेशन, कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग, ये सब चीज़ें थी। ठीक है, तो बस ये चीज़ें हो गई। अब हमारे नोट्स जो है ख़त्म हो गए, सिलेबस हमारा एंड हो गया। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड यस, मैंने बहुत ब्रीफली इसको किया है, मैंने बहुत ज़्यादा डीप में इसे नहीं किया है, तो क्योंकि चीज़ें जो हैं आपको भी पता है कि बहुत कॉमन टॉपिक है, जो अपने पहले से फैमिलियर टॉपिक है। तो और इसके हर एक टॉपिक्स जो है मैंने वो टच करके हल्का हल्का आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया। बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आओ, तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ लो, अच्छे से गो थ्रू करो। मेरी तरह ब्रीफली मत पढ़ना, पूरा डिटेल में अच्छे से हर एक लाइन पढ़ के पूरा समझ में आ जाएगा आपको। ओवरऑल मैंने समझाई दिया सब चीज़ें, और बाकी ऐसा कुछ हार्ड है नहीं जो समझ में ना आए।
समझ में आ जाएगा आपको प्रॉपर अच्छे से एग्जाम देना। एंड वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दो, बिकॉज एक ही दिन या फिर 2 दिन बचे हुए इसके एग्जाम में, एंड जो भी चीज़ें हेल्प हो जाए और लोगों को वो हो जाए, बिकॉज एट लास्ट मोमेंट ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, पास तो आराम से हो जाओगे, अच्छे स्कोर भी कर लोगे, बिकॉज टॉपिक्स हमने सारे कवर किए हैं एंड इसी टॉपिक्स में से आएंगे क्वेश्चन। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू कि आप कितना अच्छे से इसको ग्रैस्प करते हो और अच्छे से याद कर लेते हो, जिससे कि आप एग्जामिनेशन में लिख पाओ। तो ठीक है, विदाउट एनी वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।